بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، 6 فروری ہے، جمعرات کا دن ہے، اور وہ ہے نا کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے پچھلے 1 سال اور 3 مہینے گزرنے کے باوجود وہ غزہ کے اوپر اپنا تسلط جو ہے وہ نہیں جما سکے، وہاں پر اپنا کنٹرول نہیں بنا سکے، اور پھر امریکہ جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آ گیا۔ ٹرمپ کی جانب سے غزہ کو اپنے کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا گیا، جس نے پوری دنیا کے اندر کھلبلی مچا کے رکھ دی۔ گزشتہ ولاگ میں نے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی کہ کس طریقے سے یہ پلان جو ہے وہ دبردوس ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور یہاں تک کہ جو ٹرمپ کے مواخذے کا اعلان تک کر دیا گیا، اور جو امریکی سینیٹر ہیں آل گرین، اس کی جانب سے جو تحریک عدم اعتماد امپیچمنٹ کی تحریک جو ہے وہ لانے کا اعلان کیا گیا، اور تحریک عدم اعتماد لا کر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹانے کی تحریک جو ہے وہ شروع کی گئی ہے، اور یہاں تک کہ وہ بل جو ہے وہ بھی وہاں سینٹ کے اندر پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس سے بھی بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور پھر جو امریکی سینیٹرز ہیں، 1 نہیں 2 نہیں کئی سینیٹرز کی جانب سے ٹرمپ کے اس فیصلے کی کھلم کھلا جو ہے وہ مخالفت کی گئی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ بغاوت جو ہے ان کی جانب سے کر دی گئی، اور اب جو فلسطینی مزاحمت کی جانب سے ایک زبردست قسم کا کھڑاک بھی کیا گیا ہے، اور انہوں نے اسرائیلی قیدی جو ہیں ان کو رہا کرنے کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی تھی، ایک معاہدہ جو چل رہا تھا وہ بھی اب کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رہائی سے ان کی جانب سے انکار کر دیا گیا ہے، جو کہ اسرائیلی میڈیا اس کے اوپر بھرپور واویلا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو معاہدہ ایک پہلا فیز ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، تقریباً 42 دن کا فیز تھا، اس کے بعد سیکنڈ فیز شروع ہونا تھا، لیکن سیکنڈ فیز شروع ہونے سے پہلے ہی ایک ایسا یوں کہنے کہ دھوکہ دہی کے اوپر مبنی کھلواڑ کیا گیا کہ جس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر دیا ہے۔ اور اب سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، آپ جو اسرائیلی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر بھرپور آہو بکا کی جا رہی ہے۔ یہ سین کیا یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور پھر ایران جو ہے وہ بھی میدان میں آ گیا، اور اسلامی دنیا اس وقت متحد ہوتی دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو، جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقتاً میں ویسا ہو جائے، تو پورے کا پورا منظرنامہ یہاں پر تبدیل ہو جائے، جس کی وجہ سے جو سامراجی قوتیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ پاک ذات جب مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو اس نے صرف کن ہی کہنا ہے، فیکون ہو جانا ہے، اور ایسی پھر غیبی مدد آتی ہے کہ سب ششدر رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ آج ویسی ہی ایک خبر جو ہے وہ سامنے آئی کہ جو اسرائیلی فوج ہے اس کے جو گواتی بریگیڈ، ان کے سب سے طاقتور بریگیڈ جو ہے، اس کے 10 جوان جو ہے وہ نشانہ بنے، اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ گیم ہوئی کیسے ہے، کہاں سے حملہ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے، یہ بھی آپ کے سامنے تمام تر ڈیٹیلز کے ساتھ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو اسماعیل ہنیہ ہیں، ان کا ایک بیان بڑا تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، جس میں ان کی جانب سے اس پاک ذات کی قسم اٹھا کر کہا گیا کہ ٹرمپ کا وعدہ کبھی پورا نہیں ہوگا، اور یہ ان کی ویڈیو تقریباً 7 سال قبل کی ہے، جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک پلان دیا گیا تھا، جب ٹرمپ فلسطین غزہ پر اسرائیلی کنٹرول کروانا چاہتا تھا مکمل طور پر، جس طرح سے یروشلم کے اوپر اس نے یروشلم کو دارالحکومت قرار دیا، اور پھر چاہے وہ کہتے ہیں کہ چاہے ہمارے جسم سے ہمارے سر جو ہے وہ الگ کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود غزہ کے اوپر جو تسلط ہے وہ برقرار نہیں رہے گا، اور یہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ سے متعلق جو بیان سامنے آیا ہے وہ بڑا حیران کن ہے۔ کیونکہ ہر طرح کی کوششیں کرنے کے باوجود، اب ورگلانے کی کوششیں، سبز باغ دکھانے کی کوششیں، لیکن اس کے باوجود سارے کی ساری گیم الٹی گلے پڑ گئی ہے۔ ہوا کیا؟ پہلے تو یہ ان کا بیان سنیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ اسرائیل جنگ کے اختتام پر غزہ کی پٹی کو امریکہ کے حوالے کر دے گا۔ فلسطینی چک شومر جیسے لوگ پہلے ہی خطے کے اندر نئے اور جدید گھروں کے ساتھ کہیں زیادہ محفوظ اور زیادہ خوبصورت کمیونٹیز میں جا کر آباد ہو چکے ہوں گے۔ مطلب غزہ کے لوگوں کو خوبصورت جگہوں، مطلب آگے کہتا ہے کہ ان کو مختلف علاقوں میں بھیجا جائے گا، انہیں در حقیقت خوش، محفوظ اور آزاد رہنے کا موقع ملے گا۔ امریکہ پوری دنیا کی عظیم ترقیاتی ٹیموں کے ساتھ کام کر رہا ہے، آہستہ آہستہ اور احتیاط سے اس کی تعمیر شروع کرے گا، جو زمین پر اپنی نوعیت کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار پیش رفت بن جائے گی۔ امریکہ کو کسی فوجی کی ضرورت نہیں ہوگی، خطے کے اندر استحکام آئے گا۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اسی بیان کو لے کر جو اسرائیلی وزیر دفاع ہے کاٹس، اس نے کہا کہ IDF کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ کے رہائشوں کے لیے رضاکارانہ طور پر
निकलने का मंसूबा बनाए और इस मंसूबे में जमीनी, हवाई और समुद्री रास्ते खोलना शामिल है ताकि इन्हें यूरोप और कनाडा जैसी मंजिलों तक जाने में मदद मिले। लेकिन यहां पर जब ये खबरें सामने आ रही हैं तो वहां जो अमेरिकी सेनेटर्स हैं वो खुलकर सामने आ गए। पहले एक सेनेटर की जानिब से जो इंपीचमेंट के हवाले से वो एक बिल पेश करने की बात सामने आई थी, लेकिन अब जो गजा के लिए ट्रंप के नए मंसूबे पर जो कुछ अमेरिकी सेनेटर्स हैं उनका रद्द-ए-अमल सामने आया जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। नंबर 1, ट्रंप की करीबी सेनेटर जो है सेनेटर लिंडसे ग्राहम वो है जो यूं कह लें कि जो इजराइल का भरपूर साथी है, भरपूर उसके साथ खड़ा होता है, हर लिहाज से वो यूं कह लें कि उनका साथ देते हैं। और उसकी जानिब से कहा गया कि मेरे ख्याल में ये एक ऐसा मसला है, इस खित्ते में अमेरिकी अफवाज की शमूलियत शाज़ो नादर ही अच्छे नताज का बायस बनती है, ये हमारी उल्टी गले पड़ जाएगी। फिर सेनेटर मार्क मिली ने कहा कि यह मुज़हक्का खेस है और बैसियत कौम लोगों को इनकी सरजमीन से बेघर करने और इस पर कंट्रोल करने के बारे में सोचना हमारे किरदार में नहीं है। ये सब बकवास है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये जनाब वाला इस वक्त जो अमेरिकी सेनेटर मैक मिली जो है वो कह रहे हैं। और फिर सेनेटर रॉजर वॉकर कहता है कि सदर बॉक्स के बाहर सोच रहे हैं। वो कौन सा बॉक्स है जिसके बाहर सोचा जा रहा है? सेनेटर थॉमस टिलिस कहते हैं कि ये चीजों को मजीद पेचीदा बनाता है जो हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा। सेनेटर रॉबर्ट गलीगो कहते हैं कि मंसूबा मुकम्मल तौर पर अहमकाना और गैर कानूनी है। सेनेटर केट ब्रेट कहते हैं कि हम वही जानते हैं, हम वही चाहते हैं जो गजा के लोगों के लिए बेहतर हो। हम चाहते हैं कि उन्हें फलने फूलने और महफूज रहने का मौका मिले और जाहिर है कि हम इस पर बातचीत जारी रखेंगे और इसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे। मतलब इसके तमाम तर फैसले जो इसने किए सेनेटर्स की जानिब से उन तमाम को मुस्तरद कर दिया गया, भरपूर तरीके से यूं कह लें कि एक अलम बगावत जो है वो बुलंद कर दिया गया है। लेकिन गैर मामूली चीज ये है कि नेतन्याहू ने अमेरिकी वजीर दिफा हैक्सित को कहा कि मुसलमान अमेरिका को शैतान आजम और इसराइल को छोटे शैतान के तौर पर देखते हैं और हमारी जंग तुम्हारी जंग है और हमारी जीत तुम्हारी जीत है। वाहिद रास्ता बाहम बहुत मजबूत है और आपने जो गोला बारूद, मिसाइल, असलहा हमें फराहम किया है इससे हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं। हम तवक्को करते हैं कि अमेरिका हमें मजीद मजबूत करेगा ताकि हम अपने दुश्मनों को कुचल सके। और फिर बात यहां तक नहीं रुकती है। देखिए, एक तरफ ये जफ्फियां डाली जा रही हैं, प्लानिंग तरतीब दी जा रही है, लेकिन फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से ट्रंप के गजा पर कंट्रोल के प्लान को जो एक जबरदस्त किस्म का झटका दिया गया है और यूं कह लें कि इजरायली हुक्काम जो हैं वो परेशान हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमास इजरायली कैदियों को रिहा नहीं करेगा। ये कौन कह रहा है? ये इस वक्त इजरायली हुक्काम कह रहे हैं। इजरायली टीवी चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अभी तक हमास ने ट्रंप के गजा पर कंट्रोल के प्लान पर जवाब नहीं दिया और न जाने हमास ट्रंप के प्लान पर क्या जवाब देगा। लेकिन इससे पहले अभी तो 12 लोग जो है सिर्फ वही रिहा हुए, बाकी तो लोग रिहा होने और अगर वो नहीं होते और वो रोक लेता तो फिर क्या बनेगा? तो ये मामला मजीद यहां पर पेचीदा होते जा रहे हैं और ये कहानी मजीद बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि अगर जो इजराइल वहां पर अपना कंट्रोल नहीं बना सका भरपूर अमेरिका की सपोर्ट के साथ और इसके अलावा जो साम्राज्यी कुव्वतों के साथ, तो फिर अमेरिका बजाते खुद भी अगर आ जाता तो फिर क्या मामला बनेगा। लेकिन यहां कांग्रेसमैन टिम ब्रचर्ट ने कहा, खबरदार किया कि पेंटागन के जो इस वक्त लापता अरबों डॉलर जो है वो उसने बेनकाब करने के हवाले से खबरें जो है वो सामने लाई कि किस तरह से कहां पर इसको इस्तेमाल किया गया और ये हमेशा से तारीख में रहा है कि ऑडिट में झूठ मूठ की कहानी डाली जाती है और लोगों को वर्गलाया जाता है। और बर्शुट ने कहा कि सच तभी सामने आएगा जब कोई विसल ब्लोअर ऑनलाइन मालूमात लीक करेगा और इस हवाले से बहुत सी चीजें खुलकर सामने आएगी कि कहां कैसे कब गेम डाली गई। अब मिडिल ईस्ट रवेरा के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि तामीर के ऊपर कितना खर्चा जो है वो आएगा। क्यों? क्योंकि गुज़श्ता माह जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी किए गए नुकसान के तखमीने में बताया गया कि इजरायली बमबारी के बाद बच जाने वाले 50 मिलियन टन से ज्यादा मलबे को साफ करने में 21 साल लग सकते हैं और इसकी लागत 1.2 बिलियन डॉलर तक है। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के जो क़दामत पसंद अंदाजों के मुताबिक तामीर 9 पर 50 बिलियन डॉलर जो है वो लागत आएगी और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का अंदाजा है कि मलबे तले 10,000 अफराद जो है वो दबे हुए हैं। लेकिन अभी जो सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ हैं और अमेरिका बरतानिया में सफीर रहने वाले शाह फैसल के बेटे
तुर्क अल फैसल ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप के गजा पर कंट्रोल के बयान को ना सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि फलस्तीन की आजाद रियासत के कयाम का भी मुतालबा किया है, और अगर आलम अरब और आलम इस्लाम मुत्तहिद हो जाए तो ट्रंप का बाप भी वहां पर गजा के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये सऊदी अरब के साबिक जो इंटेलिजेंस चीफ और अमेरिका बरतानिया में सफीर रहने वाले शाह फैसल के बेटे के ये अल्फाज हैं। लेकिन ये खुशाइन बात है कि ट्रंप के गजा पर कंट्रोल के बयान के बाद सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, कुवैत, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, अलजायर, पाकिस्तान के अलावा जो यूरोपीय यूनियन है, ब्राजील, रूस, चीन समेत दुनिया के अक्सर ममालिक ने इस बयान और प्लान की ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि इसे एक नई जंग भड़काने की हमाकत जो है वो करार दिया। लेकिन अभी एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि रात के वक्त देखिए ना, खुदा की जात बड़ी बेनियाज है। वो जब भी कोई फैसला करती है तो उसने तो कुन कहना है और फयकून हो जाना है। अब जनाब वाला रात के वक्त तेज हवाओं के बायस जो गोलानी ब्रिगेड है उसकी 51वीं जो इन्फेंट्री बटालियन के साथ जो इनकी इजरायली फौजियों के एक ग्रुप पर क्रेन गिर गई। मतलब तूफान इतना तेज था कि वो क्रेन गिरी, जिसके नतीजे में 10 जो इजरायली फौजी हैं वो इसका निशाना बने, जिसमें हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं, मुतअद्दिद जख्मी भी हुए हैं। और वो गजा की पट्टी के इलाके में तैनात थे, जबकि गजा की पट्टी में बेघर होने वालों और तबाहशुदा घरों के मालिकान के लिए एक इंतहाई मुश्किल रात थी। उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। क्यों? क्योंकि तेज हवाओं और तेज बारिश से आरसी ख़ैमों के अंदर हालात खराब हो जाते हैं। ये जो है वो जमा देने वाली सर्दी है। कुछ खैमे जो है वो सैलाब की वजह से उखड़ गए थे। अब हैरानी इस बात की कि जिस तरह से सिनेरियो बदल रहा है, एक तकरीब के दौरान जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, वहां पर गिवाती ब्रिगेड ने बड़ी स्क्रीनों पर एक वीडियो दिखाई जिसमें गजा में फलस्तीनियों की तबाही और वहां पर जो कुछ हुआ 1 साल और 3 महीने के अंदर जो इसराइल की जानिब से वहां पर हमले किए गए, तमाम तर डिटेल्स वहां पर दिखाई गई, जिसमें इसराइली वहां पर जो सामीन है वो खुशी का इजहार कर रहे थे। ये आप हकीकत से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किन हालात की तरफ जो है वो जो इस वक्त बैठे हुए हैं कि सिचुएशन के लोगों को मरता देखकर, उनके ऊपर जुल्म होता देखकर हम खुशी का इजहार करें। ये किसी इंसान, मतलब इस्लाम के अंदर तो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो यहाँ पर 61,700 से ज़्यादा लोग जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। तो इसके ऊपर शादियाने बजाए जा रहे हैं। तो ये आप इससे ज़हनी इनकी सोच की अक्कासी कर सकते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या, इनकी अप्रोच क्या है। ये कुछ अहम अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।